हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी हेडलाइंस ने पूरे ईवी कम्युनिटी को एक्साइटेड भी किया है और कंफ्यूज भी। एंड दैट इज 100% सब्सिडी फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशंस। Sounds awesome, right? But the real question is it actually 100% or सिर्फ 100% का headline है? So let's decode the truth behind the PM E-Drive Yojana, India's biggest push toward a nationwide EV charging network. So let's plug in and charge up the facts. पीएम ई ड्राइव, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये इंडिया का न्यू नेशनल ईवी प्रोग्राम है। लॉन्च हुआ था ये अक्टूबर 2024 में और ये वैलिड है टिल मार्च 2026। एंड रिसेंटली कुछ न्यूज में है कि ये एक्सटेंड हो गया है फॉर सर्टेन सेगमेंट टिल 2028। अगर मैं इसके टोटल बजट की बात करूं, दैट इज मैसिव 10,900 करोड़ और इसमें से 200 करोड़ is just reserved for the public charging infrastructure. So, yes, this is not just a policy, it's a mission to make India's EV backbone stronger than ever. अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सच में 100% सब्सिडी मिलेगी? वेल, yes and no as well. Because yes, इसलिए because charging station is being built on government owned or public premises, like a सरकारी office, hospital, railway station, airport, school or metro campus. In that case, government will cover 100% of the cost, both upstream infrastructure, जो कि include करता है transformer, cabling and civil work, and the charger themselves. But for private and commercial sites like malls, housing complex or highways restaurant, the support is tired. मतलब कि 80% जो सब्सिडी है वो अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलेगी और 70% सब्सिडी फॉर द चार्जर हार्डवेयर इटसेल्फ। सो द 100% सब्सिडी लाइन दैट यू हैव बीन सीइंग इज पार्शियली ट्रू। इट्स full for public infrastructure and for every station in the country, and still that is very huge. India has never offered this level of support to before for EV charging. अब बात करते हैं दोस्तों कहां कहां ये इंफ्रा बनने वाला है। अराउंड 72,000 प्लस पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया, ये बहुत बड़ा नंबर है। आउट ऑफ दीज 22,000 फास्ट चार्जर्स फॉर 4 व्हीलर्स and 48,000 for 2 व्हीलर्स and 3 व्हीलर्स and 1,800 for buses and e-trucks. तो इसका जो प्रायोरिटी जोन है वो हाई ट्रैफिक मेट्रो कॉरिडोर्स, नेशनल एंड स्टेट हाईवेज एंड लार्ज अर्बन सेंटर्स वेयर ईवी डेंसिटी इज राइजिंग वेरी फास्ट। सो इमेजिन दिल्ली जयपुर हाईवे पर ईवी चार्जर हर 25 किलोमीटर पे अवेलेबल होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी रूट फुली इलेक्ट्रिफाइड होने वाला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे डॉटेड विद fast chargers. That's the vision. Now, who is actually going to install all these hardwares? Government guidelines allow state agencies like PSUs and private charge point operators, जिसे हम CPO भी बोलते हैं, to participate. And entities like IOCL, BPCL, HPCL, NHAI, AAI and metro corporations can set up themselves directly or in partnership with private tech players like Tata Power EV or ChargeZone. A classic public-private model, PSU brings land and grid access, private firms bring tech and speed. This hybrid model could finally solve India's biggest problem, that is range anxiety. So to keep the number transparent, cost benchmarks have been fixed, like roughly around 6 lakh for a 4-wheeler charger and 1.5 lakh for 2-wheeler and 3-wheeler charger. And subsidy reimbursement will happen milestone wise after a successful installation and commissioning verified by a nodal agency. ये एक smart move है because India doesn't just need a charger installed, it needs them working 24/7. ये स्कीम एक बात तो क्लियरली दिखाती है कि इंडिया इज डेड सीरियस अबाउट इट्स ईवी फ्यूचर। ईवी एडॉप्शन तभी स्केल करेगा जब ईवी चार्जिंग हर जगह अवेलेबल होगा, घर पर, ऑफिस पर, मॉल्स पर और हाईवे पर। और पीएम ई ड्राइव एग्जैक्टली वही कर रहा है, चार्जिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन। बाय 2028 आपको हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जर मिल सकता है और जब चार्जिंग टेंशन खत्म होगी तब ईवी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ सब्सिडी, इट्स अ कॉन्फिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर द ट्रस्ट प्लेयर्स India EV system is waiting for. तो दोस्तों 100% सब्सिडी हेडलाइंस आर रियल बट विद अ कॉन्टेस्ट। जैसे कि गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में फुल फंडिंग है, प्राइवेट सेक्टर्स में 80 to 70% सपोर्ट मिलने वाला है। आइदर वे इंडियाज ईवी मैप इज अबाउट टू ग्लो ग्रीन। तो आपको क्या लगता है कि क्या पीएम ड्राइव से रेंज एंजाइटी खत्म हो जाएगा? कमेंट करके बताओ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टीवी। टिल देन, स्टे चार्ज, स्टे क्यूरियस एंड जय ईवी इंडिया।